Hello, Sat Sri Akal, Namaste. A very good evening to all. I, CA Manjeet Singh, welcome you all on behalf of Team Happy GST in today's webinar. Today's webinar is organized by Team GST, Team Happy GST on legal provisions and benefits for startups in India and opportunities for chartered accountant. Now I welcome CA Suresh Sethi, guest of honor of today's webinar. CA Suresh Sethi ji is a member of ICAI since 1991 and also in practice as proprietor in Suresh Sethi and Company since 1991. He is also a peer reviewer and a reviewer of ICAI. Also, I welcome CA Naresh Lakhani ji, today's guest speaker, who is a CA, CPA, CMA, and he runs his consultancy firm. He had he had been CFO of Convergys India and on the board of few legal entities work prior to his work worked 6 years in USA. Naresh Lakhani ji is also a yoga enthusiast, public speaker, and motivator, and very passionate to contribute and support towards society. I also welcome CM Mohit Sharma, project director and a practicing CA since 2003. He is a past chairman of Sangrur branch, and now I would like to invite CA Suresh Sethi ji to. शेट्टी सर अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। सर अनम्यूट कर लो। जी सर जी। Now I'm audible, sir. राइट सर, बिल्कुल श्योर। Thank you, Manjeet ji. Thank you, Mohit ji, for inviting me to your platform. So this is my first appearance on any platform. तो मतलब जितेंद्र जी के साथ ये पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज तो जिंदगी में अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं। तो उसके साथ नरेश लखानी जी का भी है, जो ये अपने स्टार्टअप्स को लेके अपने सारे यंगर फ्रेंड्स को गाइड कर रहे हैं। तो इट विल बी बेनिफिट टू फ्रेश एंट्रेंस, जो भी अपने प्रोफेशन बंधु हैं उनको सब काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो सबसे ज़्यादा मैं राजेंद्र अरोड़ा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। तो मुझे तो लगता है कि राजेंद्र जी फुल्ली डेडिकेटेड हैं सिर्फ जीएसटी के लिए। उनको तो जीएसटी के अलावा दाएं बाएं शायद कुछ है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। तो उन्होंने इसलिए अपने नाम भी ये रखा हुआ है कि जीएसटी की राह में आपका दोस्त। मैं तो सर उनके बारे में यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को आगे या गाइड करने के लिए राजेंद्र अरोड़ा जी का उतना ही योगदान है कि जितना महाभारत को जो मैं ध्यान से देखता हूँ कि अर्जुन को गाइड करने में जितना भगवान कृष्ण का योगदान है, हमारे सब जितने भी यंगर प्रोफेशनल्स हैं उनको गाइड करने के लिए राजेंद्र अरोड़ा जी वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जब भी मैं कोई लेक्चर सुन के जितनी मुझे समझ में आती है ना, उतनी किताब पढ़ के समझ में नहीं आई कभी। तो इसलिए मैं अपने सब यंगर प्रोफेशनल कोलीग से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि राजेंद्र अरोड़ा जी के फेवर में वोट करें, सो दैट ही गेट ए चांस टू बी इन अवर सेंट्रल काउंसिल और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशन को आगे ले जाने में उनका योगदान बना रहे। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक्स अगेन। Thank you, sir. Now, I would like to invite CA Naresh Lakhani ji and proceed further. Good evening everyone. Good evening Sethi Saab for coming to this platform, and also thank you Mohit Sharma ji for inviting me, and Manjeet ji also for the same cause, and also Rajinder Arora ji, who has been working and doing great job for GST platform, and also he has taught many students and chartered accountants, and a great person and great soul, also a good human being. I wish him best of luck for his upcoming elections. I am sure he will make it to the session, to this Central Council. And today, sir, I am going to talk about opportunities for chartered accountants and also various legal provisions and benefits available for startups in India.
I would like to share my PPT before I start so that people can see it. म्यूट करना होता है क्या? Share screen. सर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म डिफरेंट है विंडो. एक सेकेंड सर. सर कैन यू सी माई PPT? Yes, sir. Yes, it's visible. चलो ठीक है, excellent. So again, as I mentioned, we are going to talk about the legal provisions and benefits for startups and opportunities or role. As a chartered accountant professional, obviously we all are looking for opportunities for new things, but as a society, as a mentor at times, CAs have a role also to make sure that business around them are growing and people are doing well. And if society grows, businesses grow, obviously, chartered accountants also grow and we find opportunities. तो सर रोल में वी ऑल नो CAs आर पार्टनर इन बिजनेस, कोई नई चीज़ नहीं है. और हम लोग जो है बिजनेस के साथ काम करते हैं और अगेन ग्रो होने में उनकी मदद करते हैं. बाकी हम वी आर ऑल्सो जर्नलिस्ट एज वेल. आई वुड से वी आर नॉट ओनली जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ मेनी थिंग्स एज वेल एट द सेम टाइम. तो आप ट्रेडिशनल CA प्रैक्टिस के अलावा वी हैव ऑल्सो बीन सपोर्टिंग मेनी ऑफ अवर क्लाइंट्स ऑन HR related issues, also on various reports and many other things. Wherever clients want us, we are there. And same role we can do for startups also. In that case, basically, the startup, the owners or the people, the startups can actually focus on their business. At the same time, chartered accountant can support them on the various things which I can call as support functions. And also we can act as mentor in the sense and as a guide, and it is not always that we get fees for each and everything. Obviously the fees is there, and it will come, but for small things, many new startups come to us for guidance, and maybe few hours we can give them easily to guide them, and if they are ours, they will definitely stay with us and if they like us. And यूजुअली इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो टैक्स रिलीफ रिलैक्सेशन वगैरह सबको दिलवाएं. वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी अबेंडेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आई ऑलवेज से कि आपको सबसे पहले बिजनेस को जानना पड़ेगा. ये नहीं है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और सोच रहा हूँ स्टार्टअप क्या होता है, कैसे होता है. ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, क्या ऑपरेशंस हैं, what are their deliverables, where they are good at it, where they are positive, a kind of pitch. So to start with, I would say, even before legal entity, is established, आप थोड़ा सा बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करते हैं, क्या उनकी पॉजिटिव साइड है, क्या बना रहे हैं, क्या डिलीवरेबल्स हैं उनके, क्या अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रन करके अंडरस्टैंड करके देखो, क्या टीम है, क्या लोग हैं, ऑल दीज थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड. तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड करने का पड़ेगा बिफोर वी एक्चुअली सॉल्व दैम. And startup is not a type of legal entity. We all know legal entities. It can be private limited company, LLP, partnership, registered partnership, unregistered partnership, public limited companies. We also sole proprietorship, all that. But for startup, I would say, in order to gain the benefits which government has, created, it has to be private limited or LLP. In few stages, at few places, registered partnership can also work. But I would still advise, if you have to get some of the income tax exemption, there at least you need LLP. तो इन दोनों में से आपको कहीं ना कहीं चूज करना पड़ेगा. कोई ऐसा कोई नई लीगल एंटिटी नहीं है, नया बिजनेस है, एक धंधा है, नया काम करने का तरीका भी हो सकता है. अब सबसे पहले तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट विद द लीगल एंटिटी. लीगल एंटिटी आपको बनवानी पड़ेगी और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि है क्या, मतलब क्या लॉज क्या है, क्या बेनिफिट्स क्या है. तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ जी, DIPP रजिस्ट्रेशन. DIPP रजिस्ट्रेशन एक, आप जो 70s और 80s में जिन्होंने लोग पैदा हुए हैं या जिन्होंने मूवीज देखी हैं, देखते हैं अमिताभ बच्चन की एंट्री होती थी. तो ये समझ लो आप अमिताभ बच्चन की एंट्री है मूवी में,
इसके अराउंड all these provisions, unless this is done, government benefits provisions will not be applicable. एज ए इंडिविजुअल नरेश लखानी अपना कोई भी दुकान कर रहा है, प्लम्बर की दुकान खोल रहा हूँ मैं, कोई इंटरनेट का काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आई कैन से टू एनीवन कि मेरा स्टार्टअप है, और ठीक है, समवेयर इन कॉमन इंग्लिश इट मेक्स सेंस, बट फॉर गवर्नमेंट to make you eligible, you have to get this registration at DIPP. तो ये सबसे पहले है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो है ये रजिस्ट्रेशन होती है. तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. और उसका एम यही है, कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी बंदा चला जाए स्टार्टअप. फॉर एग्जांपल, मैं ऑलरेडी बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं फिर बिल्डिंग बनाई जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा स्टार्टअप है, या फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बिजनेस क्विट करके चला जाता हूँ. चलो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं कोई इंटरनेट पे बिजनेस में चला गया हूँ, मैं किसी भी चीज़ की मैं और कोई नया तरीके का बिजनेस कर रहा हूँ, बट फॉर मी इट मे बी ए स्टार्टअप. बट उसमें गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, फॉर रजिस्ट्रेशन यू नीड टू हैव फ्यू थिंग्स. उसमें कहीं ना कहीं कोई इनोवेशन हो, कोई इनोवेशन इन द सेंस, या कोई ऐसी प्रोसेसेस में चेंजेस हो, कोई डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, कोई नया प्रोडक्ट हो या प्रोसेस हो. प्रोसेस इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मैं यार्न से कपड़ा बना रहा हूँ, अब कोई नई प्रोसेस है जिसमें मान लो फॉर एग्जांपल मेरी वेस्टेज 20% जाती है, उससे मैं उठा के 20% की बजाय 5% ले आता हूँ, 10% ले आता हूँ, या उसकी कोई नई फॉर्म लेता हूँ, रिफाइंड तरीके का कपड़ा आ जाता है, या कहीं पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग्स हो जाती हैं, या नई मशीनरी, नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, दैट इज समथिंग आई वुड से कोई नया चीज हो रही है, कोई नई प्रोसेस हो रही है, कोई नई तरीके की सर्विसेज ला रहा हूँ. इट मे बी यूजिंग टेक्नोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एंड ऑल्सो उसके साथ साथ जो है ना, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ. तो जरूरी नहीं है जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जाता हूँ तो उस समय जनरेशन हो रही हो, एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हो चुकी है, वेल्थ क्रिएशन हो चुकी हो, बट एटलीस्ट पोटेंशियल यू हैव टू शो. आपको एक तरीके का पिच और डेक बना के जाना पड़ेगा कि ये बिजनेस है, ये प्रोसेसेस है, ये काम करते हैं, ये लोग हैं यहाँ पर. ओनली देन यू कैन से कि हाँ भाई कुछ नई चीजें हैं, उसमें ये प्रोसेसेस हैं, यहाँ पर सेविंग्स होगी, और ये सब चीजें जो है ना कहीं सोसाइटी को वैल्यू एडिशन होंगी, और इतने एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करेंगे. अब बात आती है कि स्टार्टअप ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है. ग्राउंड लेवल पे जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हुई है DIPP के अंदर, अभी तक अराउंड 54,000 हुई है, और ऑब्वियसली यूएस कंपनीज नहीं करेंगी, बट इन ओवरऑल इन जनरल इफ यू कंपेयर स्टार्टअप बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया, वी आर जस्ट सेकंड टू यूएस. एंड मैं वो DIP रजिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ. जो ग्लोबली, जो अगर आप गूगल करके भी देखोगे तो सेकंड या थर्ड नंबर पे इंडिया जो है स्टैंड्स. पैलेस्टाइन कह रहा हूँ, इजराइल है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है इसमें. तो सेकंड थर्ड पे तो कहीं ना कहीं हम लोग हैं ही. और अगेन इसमें काफ़ी सारे नॉट ओनली इनकम टैक्स के हैं, और भी बड़े सारे लॉज हैं, और भी टेंडर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों में जो रिलैक्सेशन मिलती है, वो सब मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा. और ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल बेनिफिट ही हो, आपको कोई पैसे ही देगा, कोई ग्रांट ही देगा. नॉन फाइनेंशियल भी बड़ी सारी चीज़ें होंगी जो आप लर्न करेंगे आज, जो आपको मिल सकती हैं, और कहीं ना कहीं दैट विल हेल्प यू रन द बिजनेस मोर इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, एंड ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग और टैक्स सेविंग्स तो हमेशा होती ही है. अब एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा. कोई पुरानी कंपनी को ऐसा नहीं है आपने स्प्लिट करके सोल प्रोप्राइटरशिप को उठा के सेम टू सेम उठा के, या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप को उठा के एक नया एंटिटी में डाल दिया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपको एक सर्टिफिकेट लेना, अप्लाई करना पड़ेगा. इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड जो इसमें सेटअप हुआ है, और उसकी एक स्टार्टअप की साइट भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके ऊपर जाके आपको पूरी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी. एंड इट हैज़ टू बी, मैंने आपको बताया DIPP के अंदर आप 3 तरीके से कर सकते हैं. यू मे बी ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और LLP. बट रजिस्टर्ड पार्टनरशिप आगे जाके जो है ना, वो कहीं ना कहीं चेन में टूट जाएगी, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर इनकम टैक्स एग्जम्पशन. तो आई वुड से अगर आपका कोई क्लाइंट है तो यू स्टार्ट विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP. और प्राइवेट लिमिटेड और LLP में भी कौन सी सिचुएशन में क्या चूज करते हैं, मे बी आई विल टॉक लिटिल बिट मोर इन डिटेल लेटर ऑन. टर्नओवर जो है उसकी जो प्रीवियस ईयर में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अब मैं सबको ये बोलता हूँ कि आपको ये नहीं है कि आप अभी लीगल एंट्री रजिस्टर हुई है और इमीडिएटली आप चले जाओ DIPP के लिए. प्रैक्टिकली इट मे नॉट बी पॉसिबल, और इसमें रिजेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है. तो आपको मेक श्योर करना है कि कहीं ना कहीं प्रोसेसेस, सिस्टम्स, चीज़ें थोड़ी सी रेडी हो जाएं. कहीं ना कहीं आपके पास क्लाइंट्स दिखाने के लिए कुछ काम, आप 1, 2 साल, 3 साल आप वेट कर लो, एंड यू हैव 10 years.
अगर मैं कहूँ अगर आज आपको जाना तो लेटर से 1 नवंबर 2011 के बाद की जो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जो एलएलपी बनी है, एलएलपी तो ऑब्वियसली बाद में आया था, मेरे ख्याल शायद 13 में आया था। सो आई मीन अगर उस समय सेटअप हुई है तो आप जा सकते हो। तो अगेन यू टेक 1 2 3 ईयर्स, आप चीज़ों को सेटअप कर लो और फिर उसके बाद जाओ। फिर आजकल बड़ा कॉमन है स्टार्टअप के लिए कोई वीडियो लिंक बना लो, 2 3 5 मिनट की, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें आप ओवरऑल कंपनी के बारे में दिखाओ, क्या प्रोसेसेस है, क्या नया है, क्या स्पेशल है। वैसे तो मैं सबको बोलता हूँ, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी बिजनेस कर रहे हो, आप अपना एक अच्छा सा वीडियो बनाओ, एक अच्छी सी नीट एंड क्लीन, यू हैव योर वेबसाइट, जिसमें आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अपनी टीम के बारे में बताओ, अपनी एजुकेशन के बारे में बताओ, एंड व्हाट ऑल स्पेशल यू आर डूइंग फॉर द क्लाइंट्स, व्हाई यू आर बेटर देन अदर्स। मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर स्टार्टअप्स। आजकल तो एनजीओज भी कर रही हैं। उसके बाद आता है जी कि रिकग्निशन तो आपने ले ली, बट अगेन इट इज़ नॉट दैट इजी। आई एम टेलिंग यू, रिजेक्शन रेट इज़ वेरी हाई, एंड रिजेक्शन के अलावा क्लैरिफिकेशन, मोर डॉक्यूमेंट्स, ऑल दोज थिंग्स जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना है वो दे विल आस्क यू। उसके बाद है कि ATIAC की रजिस्ट्रेशन, जो कि एक्चुअली आपको इनकम टैक्स की जो एग्जाम्पशन मिलेगी 3 साल की, इन ए स्पैन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो 3 लगातार साल, फॉर एग्जांपल मैं अगर आज से शुरू करता हूँ, दिस ईयर इज 21-22, तो लेटर से 23, उसके बाद है 22-23, एंड उसके बाद है 23-24, तो मार्च लेटर से 24 तक 3 साल ले लूंगा। तो मतलब कोई भी गैप में, मतलब मैं देख लूँ, ऑब्वियसली दोज 3 years डोंट हैव टू बी द फर्स्ट 3 years, बिकॉज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और द स्टार्टअप में ऑलरेडी बी इन द लॉसेस, तो वो कोई फायदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पशन के लिए मैं कहूँगा आप जो है थोड़ा सा वेट कर लो, प्रॉफिट जो है उसमें होने दो। और उसके बाद, और इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि ये अलग है, आपके पास DIPP हो चुकी है, लेकिन फिर आपको इसके लिए दोबारा जाना पड़ेगा, और ये हार्डेस्ट है। अभी तक जो है अराउंड 400 जो स्टार्टअप्स को केवल दे हैव गॉट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट सो फार, और इसके लिए भी इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड है, ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफरेंट टीम है। दे सेट इसमें भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, और इसमें देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ओनली दीज 2 टाइप ऑफ एंटिटीज। तो जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप थी वो यहाँ से जो चेन से दैट हैज बीन टेकन आउट। तो इसलिए शुरू से ही अगर आप जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में शुरू करेंगे तो सही रहेगा। अब मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, मे बी आई विल आल्सो डिस्कस लेटर ऑन, बट यहीं मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में यू कैन चूज, एंड ऑब्वियसली यू कैन गाइड, यू विल बी आस्क्ड कि हाँ भाई दोनों में से कौन सी बनाई जाए। मैं कहूँगा कि अगर शुरू में ही प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, सब कुछ सही चीज़ें चल रही हैं, शुरू से ही कैश काउ है, कैश जनरेट हो रहा है, और in near future you don't want to sell it, let us say you want to wait for a couple of more years to sell, or to have someone invest in your startup, तो उसमें आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको शुरू से ही है कि बस जल्दी जल्दी इसको बेच देना है, इसमें प्रोसेसेस बनानी है, इसमें थोड़ा सा कस्टमर्स जनरेट करने हैं, एंड यू आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स, तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड में जो है चेंज ऑफ जो शेयर होल्डर्स इज ईजियर, जो चेंजिंग ऑफ हैंड्स ऑफ ओनरशिप इज क्वाइट ईजियर इन प्राइवेट लिमिटेड एज कम्पेयर टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जैसे मैंने बताया कि यू डोंट हैव टू पे टैक्स ट्वाइस। प्राइवेट लिमिटेड में आप पहले, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टैक्स देगी अपने प्रॉफिट्स पे, फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स देंगे, तो दैट बिकम्स डिसएडवांटेजेस। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इसके लिए क्या है कि इनकॉर्पोरेशन का जो है आफ्टर 1 अप्रैल 2016 के इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए। उसके लिए ये पोर्टल है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, आप गूगल करके देख सकते हो। उसमें ऑब्वियसली यू हैव टू क्रिएट लॉगिन फॉर दैट। उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, LLP डीड, बोर्ड रेजोल्यूशन, अकाउंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली यू हैव टू गेट फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर आपके पास जो इनकॉर्पोरेशन हुई है 1 अप्रैल 2018, तो उसके बाद जितने आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो सब आप फाइल कर सकते हो, क्योंकि 3 साल की इसके अंदर यूजुअली एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको फाइल करो।
और 3 साल से अगर कम है तो ऑब्वियसली यू विल डू इट फॉर लेस देन दैट। एंड अगेन दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट। कई बार लोग ये सोच के चलते हैं कि DIPP की रजिस्ट्रेशन हो गई तो मेरा ATI AC जो है साथ साथ हो गया। ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ आप रिमेंबर करना। कई बार ये मतलब इवन गवर्नमेंट भी कई जगह पे इसी तरह से प्रमोट कर रही होती है, ऐसा लगता है मिसकंसेप्शन लगता है कि हाँ एक DIPP हो गया तो ये भी हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अगेन वही एक अच्छा सा आपको कहीं ना कहीं पिच बनानी पड़ेगी, जो मैंने पहले भी बोला है, वीडियो लिंक वगैरह 2-3 मिनट का, क्या स्पेशल है, कोई आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसका वॉक थ्रू करके दिखाना पड़ेगा, कैसे चलता है, क्या बढ़िया है, क्या उसमें नया है, सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखानी पड़ेंगी कि प्रोसेसेस नहीं है, कहाँ कॉस्ट सेविंग हो रही है, क्या नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन जो पुरानी वाली कंडीशन थी कि इट शुड नॉट बी फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप, रिकंस्ट्रक्शन और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को नहीं होना चाहिए, कुछ नया आप बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, या पुरानी प्लांट एंड मशीनरी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है ये डिफरेंट, अब ये एक डिफरेंट तरह की एग्जाम्पशन है। आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वी ऑल नो इज सेक्शन 56, उसके अंदर एक सब सेक्शन है 56 to 7B। उसके अंदर अगर कोई आप कंपनी जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यूएशन से ऊपर अगर कोई खरीदता है तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है अदर इनकम में। तो उस प्रोविजन का जो है इसके अंदर एंजल टैक्स या स्टार्टअप्स को भी थोड़ा सा बेनिफिट अवेलेबल है। आई विल टॉक अबाउट दैट। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, प्रोविजन के अंदर क्या है कि अगर आप जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो या नेट एसेट मेथड है या कोई और जो रिकग्नाइज्ड मेथड है असेसिंग ऑफिसर से, अगर उसके ऊपर, और स्टार्टअप वी ऑल नो दैट कि उनका नॉर्मली कैश फ्लो भी ज़्यादा नहीं होता और उनकी एसेट्स भी ज़्यादा नहीं होती, बट ऑब्वियसली दे क्रिएट बज़ और उनके पास कहीं ना कहीं नई प्रोसेसेस होती हैं जिनकी हो सकता है इन सिचुएशन के अंदर वैल्यूएशन ना भी आए। तो जो इन्वेस्टर है, जो एंजल इन्वेस्टर है, मे बी दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट एंड पे मोर देन एनी ऑफ दीज टू मेथड्स। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस उसके ऊपर अदर इनकम पे जो ओवर एंड अबव ये जो 2 मेथड मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं या तीसरा मेथड जो असेसिंग ऑफिसर एक्सेप्ट करता है होता तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में ही करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी ऑटोमेटिक नहीं है। अब इसमें भी वही है कि ये जो मैंने बोला था अमिताभ बच्चन की एंट्री यहाँ पे भी आ जाएगी। ये DIPP जो अमिताभ बच्चन है आप लेके चलो, अगर इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, अमिताभ बच्चन नहीं आए तो कुछ नहीं होने वाला। सारे काम जो है इसके बाद ही शुरू होते हैं। तो इसकी DIPP की रजिस्ट्रेशन इसके लिए भी ज़रूरी है। अब उसमें क्या है कि कुछ कंडीशंस हैं कि पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड, पेड अप कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम शुड नॉट ऑफ द स्टार्टअप शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़, और जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है उसकी भी लिमिट है 25 करोड़ की। और नेटवर्थ जो, लेकिन लिस्टेड कंपनीज में थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसमें उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से जानी होनी चाहिए। तो बट ये दीज आर फॉर लिस्टेड कंपनीज। और कुछ और भी कंडीशंस हैं जो एक्चुअली इन्वेस्टर्स के, जो एंजल इन्वेस्टर के ऊपर भी लगाई गई हैं। उसके बाद है जी एग्जाम्पशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54E। 54E क्या है जी, आपको कैपिटल गेन हुआ है उसको आप स्पेसिफाइड एसेट्स में लॉन्ग टर्म गेन के लिए आप लगाते हैं। नॉर्मली हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टार्टअप वाला सेक्शन हमने ज़्यादा ध्यान से शायद पढ़ा नहीं होगा, तो ये स्टार्टअप के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो आपको कैपिटल गेन हुआ है, लेकिन कैपिटल गेन का जो अमाउंट है वो 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर ऊपर वाला होगा तो ऊपर वाले पोर्शन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, 50 तक जो है आपको जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उसमें आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अगेन आप स्पेसिफाइड जो एलिजिबल स्पेसिफाइड जो गवर्नमेंट ने जो लॉन्ग टर्म गेन के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रपोज किया है उसमें आपको 6 मंथ्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 50 लाख रुपए अगर आपको कहीं से गेन हुआ है तो कैपिटल गेन आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। सो जस्ट इमेजिन इट्स ए बिग बेनिफिट आई वुड से। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप नोट कर लो थोड़ा सा, साथ के साथ सेक्शन सिर्फ नोट करते जाओ। सारी चीज़ें ऑब्वियसली याद तो किसी को भी नहीं हो सकती, बट सिर्फ सेक्शन नोट करते जाओ सो दैट इफ़ यू कम अक्रॉस स्टार्टअप मे बी एटलीस्ट you can search it and maybe you can guide your client better about all these things. तो मैंने जो पहले बताया था, मैं आप स्टेप लिखना चाहता हूँ। DIPP की रजिस्ट्रेशन मैंने बताया था, फिर सेक्शन
ATIAC का मैंने बताया था, फिर ये एंजल टैक्स एग्जम्पशन मैंने बताई थी सेक्शन 56 के अंदर। उसके बाद ये जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 54EE की जो है इन्वेस्टमेंट पे आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 54GB के अंदर है, उसमें अंदर भी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। तो उसमें नेट, उसमें आप शेयर्स में अगर लगा देते हैं, शेयर्स ऑफ द स्टार्टअप में एलिजिबल स्टार्टअप्स, अगेन एलिजिबल वाला कौन सा होगा, DIPP वाला ही एलिजिबल होंगे, तो उसके ऊपर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। उसमें भी थोड़ा सा 1 ईयर, विद इन 1 ईयर आपको लगाना पड़ेगा, सॉरी, विद इन 1 ईयर उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है स्टार्टअप ने उसको रख लिया, पार्क कर दिया और कभी यूज ही नहीं हो रहा, तो उसको यूटिलाइज भी करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। और ये तो मैं बात कर रहा था इनकम टैक्स के अंदर, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। जो IPR रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, उसके अंदर जो है फीस के अंदर 50% रिबेट ऑन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, 80% ऑन पेटेंट एप्लीकेशन। आई थिंक ये 9,000 होती है जो ट्रेडमार्क की, उसकी 4,500 फीस लगेगी। पेटेंट की भी आई थिंक अराउंड सेम होती है, उसकी भी 80% लगेगी सिर्फ। तो ये सब बेनिफिट्स आपको, और फास्ट ट्रैक हो जाएंगी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस। उसके बाद है काफ़ी सारे लेबर लॉज हमारे यहाँ आ जाते हैं, 6 लेबर लॉज और 3 एनवायरनमेंट लॉ हैं। उसके अंदर आपको जो है, अगर आप सेल्फ सर्टिफिकेशन देते हैं कि DIPP के अंदर हम रजिस्टर हैं, तो आपकी इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होगी, और एनवायरनमेंट लॉज के अंदर भी आपकी रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं होगी, और ये बेनिफिट आपको 5 साल तक मिल जाएगा। तो एनवायरनमेंट लॉज के अंदर आप वाइट कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। वाइट कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारी आपको जो है छूट मिल जाती है और रिलैक्सेशन मिल जाती है। उसके बाद है अदर गवर्नमेंट टेंडर्स में। गवर्नमेंट टेंडर्स में काफ़ी बारी आपका जो नॉर्म्स हैं, वो स्टार्टअप या DIPP रजिस्ट्रेशन जहाँ पे हो रखी है आपकी, वहाँ पे आपको जैसे मान लो मिनिमम कैपिटल, मिनिमम टर्नओवर या एक्सपीरियंस वगैरह के नॉर्म्स जो हैं वो रिलैक्स कर दिए जाते हैं, या वो एक्चुअली होते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब नॉर्मल किसी अनरजिस्टर्ड DIPP के लिए मान लो फॉर एग्जांपल है कि 5 years ऑफ रनिंग बिजनेस, या टर्नओवर ऑफ 100 करोड़, या कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी होगी, या फिर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड स्टेट गवर्नमेंट टू डू अवे विद सच कंडीशंस। उनको ये है कि अगर स्टार्टअप्स को जो 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 ऑलरेडी जिनको टेस्ट किया गया है, जिनको ऑलरेडी स्क्रीनिंग प्रोसेस जा चुकी हैं, एंड दिस इज अगेन टू प्रमोट स्टार्टअप एनवायरनमेंट। और अगर इंडिया में मैं बोल रहा हूँ सेकंड नंबर पे या नेक्स्ट टू US है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट भी देना पड़ेगा, एक एनवायरनमेंट भी आपको बनाना पड़ेगा। सिमिलरली फंड्स और ग्रांट्स ही मिलती हैं। फंड्स और ग्रांट के लिए भी आपको वही सेम स्टार्टअप वाले पोर्टल में ही आपको जाना पड़ेगा, और उसमें वेरियस स्कीम्स हैं, वेरियस चीज़ें हैं जिसके लिए आपको, ज़रूरी नहीं है कि 20 लाख आपको फॉर एग्जांपल कोई कोविड के लिए कुछ कर रहे हैं या कोई डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, उसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। उनमें से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको ग्रांट मिल जाएगी, एंड ग्रांट यू डोंट हैव टू रिटर्न। ग्रांट इज ऑब्वियसली नॉट लोन, तो आपको रिटर्न भी नहीं करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली देयर वुड बी सम कंडीशंस अटैच्ड टू इट। अब फास्टैग एग्जिट भी हो जाता है, कई बार एग्जिट बड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें फास्टैग एग्जिट भी है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो विद इन 90 days जो है वो उसकी डेट ऑफ फ्रॉम द एप्लीकेशन, वो एग्जिट का भी आपको मिल जाएगा। अब बात करता हूँ मैं CA के लिए। देखो ऑब्वियसली फर्स्ट मैंने जैसे बोला था, वी हैव टू नो थिंग्स बिफोर वी स्टार्ट, but not only legal provision, there are many other things which CA can do. And again, as I mentioned, CAs are generalists, जो ट्रेडिशनल चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं वो सब चीज़ें तो कर ही सकते हैं, बट देर आर मैनी मोर थिंग्स वेयर वी कैन एटलीस्ट फोकस, मे बी वी डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। तो ये अभी तो मैं ट्रेडिशनल चीज़ें इसमें जो आपको दिख रही है लिखी हुई है, LLP और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, DIP रजिस्ट्रेशन, टैक्स एग्जाम्पशन, एंजल टैक्सेशन, और ये सारी जो है ATIAC, ये सब चीज़ें जो टैक्स रिलैक्सेशन है। बिजनेस वैल्यूएशन, आई नो CAs कैन नॉट डू इट, बट रजिस्टर्ड वैल्यूअर अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं। आई थिंक दिस इज अनदर वे ऑफ इंक्रीजिंग योर प्रैक्टिस, और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है, मैनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर सेइंग। तो ये एक नया वेन्यू है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड इट इज़ ईजियर टू कनेक्ट विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। स्पेशली जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर बेच रहे हैं, कितने प्राइस में बेच रहे हैं, उसके लिए मोस्ट कॉमनली आई हैव सीन दैट इज यूज्ड
बाकी ये पैन टैन जीएसटी रजिस्ट्रेशन वी ऑल नो, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब शेयर बिकेंगे खरीदेंगे, कोई भी नया इन्वेस्टर आएगा तो उसके अंदर आप बड़ा अच्छा क्या मॉडल होगा, किस तरीके से बेचेंगे, कितने बेचेंगे, कितना परसेंट कौन रखेगा, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। ये नॉर्मल ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, आरओसी कंप्लायंस वी ऑल नो, कोई हमारे लिए नहीं है। एमएसएमई की प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी है एंड स्टार्टअप के साथ साथ आप एमएसएमई में भी रजिस्टर करा सकते हैं। हो सकता है कि स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन में इट मे बी टेकिंग सम टाइम, तो एमएसएमई में भी बड़े सारे बेनिफिट हैं, उसको भी आप साथ के साथ एटलीस्ट एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो है पिच डॉक्यूमेंट, मैं पहले भी बात की थी, आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा पिच डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसके अंदर कंपनी क्या कर रही है, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनी सॉल्व करेगी, कंपनी के पास सोल्यूशन क्या है, टीम क्या है, कौन सीईओ है, सीएफओ है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सोल्यूशन है, क्यों बेटर है, हमारा कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनसे हम क्या बेटर कर रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आएगी, फंडिंग यूज़ कहाँ होगी, फंडिंग ऑब्वियसली कितना हम कैपिटल में लगाएंगे, कितना ऑपरेशंस में लगाएंगे, कितना हम ट्रेनिंग्स में लगाएंगे, ये सब चीज़ें। और अगेन की मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह जो हैं उसके बारे में एक अच्छा सा आप डेक बना सकते हैं, ये सब चीज़ें। आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम वेयर इट हैज़ टू स्टार्ट विद। ये चीज़ जो है डेक जो है आपका DIPP रजिस्ट्रेशन के लिए भी काम आएगा और ये इनकम टैक्स के लिए भी आपके काम आएगा। अकाउंटिंग प्रैक्टिस वी ऑल नो, नॉर्मली स्टार्टअप्स के पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते हैं, ना ही इतना ज़्यादा बिजनेस कई बार होता है, तो आप पूरा का पूरा या तो खुद ही सेटअप कर दो, खुद ही सारी चीज़ें रन कर लो, टैक्स कंप्लायंसेस डिपार्टमेंट फ्रॉम प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़ जो कई बार हम मिस कर देते हैं, डिज़ाइनिंग एंड सपोर्टिंग ऑन MIS रिपोर्ट्स। जो नॉर्मली फाउंडर्स होते हैं दे आर टेक्नोलॉजी सेवी एंड दे आर गुड इन बिजनेस। मैं कहूँगा जनरली भी आप जितने भी क्लाइंट्स हैं आपके, उनको कहीं ना कहीं आप एक डिज़ाइन और सपोर्ट आपकी अपनी टीम ही कुछ MIS रिपोर्ट्स, अच्छी सी रिपोर्ट्स बना के, जिसमें वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस, ग्रॉस मार्जिन कितना चल रहा है, ट्रेंड्स वगैरह, इस तरह की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो हैं, मैं कहूँगा आप पिच करो अपने ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स के लिए करो। एंड ऑब्वियसली स्टार्टअप्स वाले जो लोग होते हैं, थोड़े से फाउंडर्स, वो टेक्नोलॉजी से भी होते हैं और कहीं ना कहीं उनका आउटलुक जो है टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स इज देयर, दे वांट समवन टू सपोर्ट देम। तो उसमें आप कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। पेरोल प्रोसेसिंग कंप्लायंस कोई नई चीज़ नहीं है, सब हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है वर्चुअल CFO कंट्रोलरशिप। मैं कहता हूँ जो भी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो अगर प्रैक्टिस में आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस तरह से अपने क्लाइंट्स ढूंढो जिनके साथ आपका टाई अप एक एज ए बिजनेस पार्टनर या CFO या कंट्रोलरशिप फंक्शन का आप थोड़ा सा उनका काम ले लो। छोटे छोटे क्लाइंट अगर आपके पास हैं तो जो कंट्रोलर काम करता है, जो CFO काम करता है कंपनीज के लिए, 4-5 अगर आप क्लाइंट ले लेते हो, 25-30 हज़ार रुपये आप महीने का रेवेन्यू एक से जनरेट कर लेते हो, तो एटलीस्ट 1.25 लाख रुपये आपका यहाँ से आ जाएगा। एंड अगेन यू हैव टू पिच, यू हैव टू शो के व्हाट ऑल यू विल डू, व्हाट अदर नॉर्मली पीपल आर नॉट डूइंग फॉर देम। और ये अनट्रेडिशनल प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से। तो आपको आपका 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए जो है इजीली यू कैन मेक इट फ्रॉम हियर, फ्रॉम द प्रैक्टिस। ऑब्वियसली यू विल हैव अदर सोर्सेज जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। और अगेन जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम टैक्स भी हम डिपार्टमेंट पूरा कर सकते हैं, लीगल भी, वी आर वेरी गुड इन मैनी लीगल थिंग्स। जरूरी नहीं है कि लॉयर हो हमारे साथ, बट फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट्स बनाना, सेक्रेटेरिएट काम में अब तो वैसे भी मल्टी पार्टनरशिप मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप्स आ रही हैं। आप कहीं ना कहीं किसी के साथ अलायंस कर सकते हैं या कोई एम्प्लॉय रख सकते हैं या थोड़ा सा पार्ट टाइमर और आउटसोर्स भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि एग्रीमेंट्स, SOPs वगैरह में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन प्ले ए बिग रोल। हमारा कंपटीशन इसमें थोड़ा सा मार्जिन्स भी अच्छे हैं। अगर आप लीगल एग्रीमेंट्स, और सब क्लाइंट्स को इनकरेज करो कि लीगल एग्रीमेंट्स जो हैं वो बनाया करें, हर डॉक्यूमेंट जो है वो राइटिंग में किया करें। बड़ी बार होता है चीज़ें राइटिंग में नहीं होती, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स जो भी हैं, स्पेशली फॉर द स्मॉलर वंस, दिस इज नो हार्म इन इट। जब गड़बड़ हो जाती है तब बंदे को पता चलता है कि हाँ ये नुकसान हो सकता है, ये तो ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें होंगी। और वी आर वेरी गुड बिकॉज वी अंडरस्टैंड कमर्शियल टर्म्स ऑल्सो एंड द लीगल साइड ऑल्सो। आई बिलीव at least for small clients we can do this job very well. Again, SOPs, processes, procedures. Also we can be part of board of directors as well for
प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है इसमें। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमारा रोल्स होते हैं। कभी काफ़ी बार इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, कोई रिलेटेड पार्टी होती है, या फिर जो ऑलरेडी जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट वगैरह चीज़ों का भी होगा, तो इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। अगेन जैसे मैंने बोला, कोई इन्वेस्टर आ रहा है, कोई नया फंडिंग हो रही है, तो उसमें आप जो है लाइक यू कैन बी ऑन द साइड ऑफ इन्वेस्टर और ऑन द स्टार्टअप इन्वेस्टी, दोनों की साइड में आप जिस तरह भी बैठे हो। ऑब्वियसली इफ यू आर ऑन इन्वेस्टी साइड, you would like to show them or showcase how good they are, what special things they have, why valuation should be high, what are their core strength, all these things आप जो है founders के साथ बैठ के you can make a good value addition, and obviously they pay you for per day और per hour basis पे आप उनको चार्ज कर सकते हैं। ड्यू डिलीजेंस में दोनों साइड में आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टी साइड में, वहाँ पे भी ऑब्वियसली जो भी कंप्लाइंसेस हो रही हैं, जो भी उनकी जो आज तक के जो उन्होंने किया है, जो उसके फाइनेंशियल नंबर्स है, फिगर्स या टर्म शीट जो है, जो बेसिक एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ों में आप उनको दोनों तरफ से, किसी भी तरफ में हो आप, दोनों तरफ आपका रोल है। वारंटीज, इंडेमनिटीज या डिस्क्लोजर लेटर्स हैं, इनिशियली जो छोटे मोटे एग्रीमेंट हो रहे हैं, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स के राइट्स क्या होंगे, और एग्रीमेंट्स में सब चीज़ें आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद मैंने एमएसएमई का भी बोला था, एमएसएमई में भी आप साथ में कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन होती है इसमें, और बड़े सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह के बेनिफिट हैं, वेरी सिमिलर टू जो स्टार्टअप वाले हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बस आई वुड लाइक टू कंक्लूड। सो जो मैंने डिस्कस किया था, सो यू हैव टू स्टार्ट विद DIPP रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले ज़रूरी है। साथ में साथ आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं तो आप उतना वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे, एंड बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो इनकम टैक्स एग्जम्पशन में भी आपको इतनी ज़्यादा आपको जो है वो नहीं मिलेगा, लीवे नहीं मिलेगा, आपको हो सकता ना भी रिजेक्ट भी हो जाए। एंड सेम गोज फॉर DIPP रजिस्ट्रेशन में भी आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। और जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे, जितना ज़्यादा आप बिजनेस के साथ पार्टनरिंग करेंगे, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पिच डेक मैंने बात किया था, एंजल टैक्सेशन की एग्जम्पशन कैसे मिल सकती है, ATIC, ये सब चीज़ें, वर्चुअल CFO, और अगेन वी हैव मैनी मोर ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ साथ में साथ आएंगी। एंड many times when businesses grow, and actually this is how chartered accountants grow, और एक के साथ कई बार नए भी आते हैं, and if someone is starting new one today, obviously he or she will start another one later also. So this is all I had on the slide and discussion. Maybe we can keep it open for discussion, और किसी को क्वेश्चन है तो। एक क्वेरी सर आई हुई है, इफ यू कैन टेक प्लीज, आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन। हाँ जी सर, एक सेकंड में देखता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूँ सर। निशान सिंगला जी है मेरे लिए, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नया, थोड़ा सा ये वाला जो है। नो इशू सर, आई विल रीड इट फॉर यू। निशान सिंगला जी पूछ रहे हैं, सर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड बैंगल्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन? देखो सर, आपको मैंने अगेन ऐसे, आप जो पुरानी चीजें नहीं कर रहे हैं उसमें आपको बताना पड़ेगा कि गोल्ड में आप क्या नई प्रोसेस ले हैं, क्या नई चीजें, वही आप जो आपके पिताजी कर रहे थे वही सेम टू सेम आप कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, इमीडिएटली रिजेक्ट होगा। कोई नई प्रोसेस है, उसमें कहीं वेस्टेज कम हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें कॉस्टिंग कम आ रही है, या उसमें फिर आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, ये सारी चीज़ें भी आपको दिखानी पड़ेंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप कपड़े जो यान है वो बना रहे हैं या कपड़ा बना रहे हैं, तो प्रोसेस में मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 टन में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं कहता हूँ 80 किलो लग रही है आपकी यान या कॉटन लग रही है, आप कोई नई प्रोसेस ला रहे हैं जिससे 70-75 हो जाती है। इसी तरह गोल्ड में अगर मान लो कहीं दिखा सकते हैं आपकी वेस्टेज कम हो रही है, या कोई नई क्वालिटी का आ रहा है, कोई ऐसी नई चीज़ आ रही है, और जरूरी नहीं है कि वो 100% ओरिजिनल ही हो, इंडिया में कहीं ना कहीं बाहर से भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती चीज़ें चल रही हैं। ऑब्वियसली हर बंदा इनोवेटर एकदम 100% तो नहीं हो सकता, बट समथिंग न्यू हैज़ टू बी शोन। तो उसका परसेंटेज वाला कोई इशू नहीं है सर, कितनी परसेंट इंप्रूवमेंट है, जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। एंड आल्सो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। आपके नज़र में हो सकता है कोई चीज़ नहीं हो, मेरी नज़र में ना हो। अगर 5 बंदे बैठे हैं मिनिस्ट्रियल ग्रुप में, आप जैसे सीए के एग्जाम देते हैं, हो सकता है कोई बंदा आपको 45 दे दे, हो सकता है कोई 50 दे दे, और दैट कैन मेक डिफरेंस। दिस इज सब्जेक्टिव, हाँ जी, बेस्ड ऑन द
version of the person who is dealing with it. हाँ, बट आपको कहीं ना कहीं सर शो तो करना ही पड़ेगा कि करना आप ही कुछ पड़ेगा। नई चीज़ें कर रहे हैं। वो जो 4-5 वर्ड्स थे, वो जो डेफिनेशन के अंदर कोई नई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, प्रोसेसेस नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं शो करनी पड़ेंगी। Right. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की पोटेंशियल है, जरूरी नहीं कि आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। और मैं जैसे कह रहा था कि आप इमीडिएटली, ये नहीं है कि अभी आपने जस्ट अभी डिस्कशन हुई है मेरी और आपकी एक नए बिजनेस की और आप DIPP के पास पहुंच जाओगे तो 99.99% कुछ भी नहीं होने वाला। अब थोड़ी सी तसल्ली रखो, 10 साल आपके पास है, मैं नहीं कह रहा आप 10वें साल में कराओ, बट आप 1-2 साल तो मैं कहूँगा आराम से चीज़ों को रन कर लो। अगर आप सारे बेनिफिट्स, अब बिजनेस को स्टेबल कर लो, थोड़ा से आप कस्टमर जनरेट कर लो, थोड़ा सा दिखाने के लिए, थोड़ा सा अपना क्या काम किया प्रोडक्शन वो भी आप दिखा सकते हो। कोई नई क्लाइंट्स हैं, उस जो क्लाइंट्स हैं आपके, उनसे टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, आपने उनका क्या काम किया वो दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1-2 साल आराम से आप ले लो। जी सर। सर एक और क्वेरी है नीलम कुमार जी। सर आई ऑल्सो वांट टू रजिस्टर अ स्टार्टअप बट फर्म इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17, कैन वी डू? हाँ, क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बताया, देखो DIPP के लिए 10 साल है, ठीक है, और जो इनकम टैक्स के लिए ATIAC के लिए वो 1 अप्रैल 2016 है। तो जो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से दोनों में फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। बट इट मस्ट बी अ कंपनी और एन LLP। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि DIPP के लिए तो आपका चल जाएगा, आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में, फिर लेकिन कंपनी में आ गए, सॉरी इनकम टैक्स में जाएगा, तो आप 2 ही लेके चलो बस। नेक्स्ट सर एक और है, एनी बिजनेस आइडिया व्हिच जनरली गेट्स अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन? नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं उसको ज़रा पॉजिटिव तरीके से दिया जाता है। आजकल हिंदुस्तान के अंदर वैसे भी टेक्नोलॉजी, इंडिया इज़ कंसिडर्ड प्रो, और तो टेक्नोलॉजी आप ट्रेडिशनल चीज़ों पे जाएंगे तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो अप्रूवल्स भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी पे ही हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी की चीज़ों पे ही हो रहे हैं। राइट सर। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द रजिस्ट्रेशन आफ्टर एप्लीकेशन जनरली? देखो बहुत टाइम भी लग सकता है, होने को कुछ महीने में भी हो जाए, क्योंकि ये जो है ना, ये रोज मतलब इट्स नॉट लाइक कि ऑफिसर बैठा हुआ है, आपने अपलोड किया, वो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मीटिंग होगी जो यूजुअली 1-2 महीने बाद, 1-2 महीने बाद ही होती है। और मैं कहूँगा लेट अस बी रियलिस्टिक, इतना आपकी फर्स्ट गो में चांसेस काफ़ी नेग्लिजिबल है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ ना कुछ, आप 5-6 महीने लेके चलो, और अगेन टू बी वेरी फ्रैंक रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी भी है। तो आपको मतलब जो है ना, सोच समझ के अच्छी तरह से पिच डेक बनाना है। मैंने आपको पहले बताया, इसमें बड़ी सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी है। इट इज़ लाइक ए इंटरव्यू प्रोसेस, एंड ऑब्वियसली यू नीड टू शो व्हाट यू हैव बीन डूइंग आल्सो। सर एक और इशू आया है, पार्टनरशिप फर्म, वो क्लियर नहीं है सर, बट आई थिंक यू हैव ऑलरेडी suggested that partnership firm is eligible for DIPP but will not be benefited in the income tax. Exactly sir, I'm not wrong. बेसिकली सर वो ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी जिसके साथ रिलेटेड है वही ज्यादा वो उनको अप्रूव करेंगे। वो देखा जाए तो जो ऑटोमेटेड हो गए सिस्टम, जो ऑटोमेटिक होता है, सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया, टेक्नोलॉजी जिसमें इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा अप्रूव हो रही हैं, और ज़्यादातर इनोवेशन और प्रोसेसेस, नई चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें भी आती हैं, उसी में जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा ऊबर भी टेक्नोलॉजी बिजनेस ही है एक तरीके से देखा जाए तो। उन्होंने किस तरीके से सारे टैक्सीज को, कैब्स को कनेक्ट कर दिया, ओला उबर एग्रीगेटर टाइप हो गया ना जो। हाँ, कोई नया कंसेप्ट आया। एग्जैक्टली। तो फिर जैसे एग्रीगेटर का ही हम बात कर रहे हैं, ओला उबर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, अगर कोई नया इसी पैटर्न पे नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो तो नई, वो मुझे नहीं आई डाउट, मतलब आई ऑनेस्टली डाउट के कुछ आपको नया ही। तो सर कोई भी आइडिया है तो फर्स्ट जो पर्सन करेगा उसी को बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद मिलेगा ही नहीं किसी को। मतलब शुरू के 1-2-3 को मिल जाएगा ज्यादा। कोई चाय का कर ले, एग्रीगेटर बन जाए, चाय वाली दुकानों का, या कुछ और किसी तरीके का, मतलब कुछ नया कुछ तो करे। मतलब अब ओला उबर तो पुराने हो गए हैं। राइट, उनको मालूम है, मतलब ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक बना लेता हूँ पोर्टल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि भाई नरेश लखानी का ईमेल आईडी है, नरेश लखानी जैसे ही ईमेल आईडी लेके मान लो
कोई मंत्रा के पास पहुंचेगा, किसी के पास पहुंचेगा, तो मेरे साइज का कौन सा कपड़ा होगा वो पहले ही सजेस्ट कर देगा, हाँ जी ये मीडियम साइज, लार्ज साइज कौन सा है ना, वो ईमेल आईडी से मेरे पास डेटाबेस है वो कनेक्ट करके बता देगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ नया काम किया आपने, उसको पूछना नहीं पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि मार्क्स एंड स्पेंसर का साइज मेरा मीडियम हो, जबकि कोई रिलायंस ट्रेंड या किसी और कंपनी का मेरा लार्ज आता हो, तो वो कंपनी का भी आपको पता है, तो हो सकता है वो इस तरह की कोई नई चीज लेके जाएं। तो उसके लिए सर ऐसा होगा ना, फिर तो जो सारा डाटा चाहिए, हाँ डेटा होगा, किसी आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। मान लो गवर्नमेंट के पास आधार है सबका, तो क्या ऐसी चीज वहां फिट करके वही सारा डाटा सिंक हो सकता है? हाँ ऑब्वियसली, और डेटा चोरी ना किया हो आपने कहीं ना कहीं, ये भी है आजकल, जैसे लगता है जी कि डेटा इधर उधर से शेयर कर देते हैं, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अगर आप देखो ना, अब अगर आप गूगल में आप सर्च करोगे, आपको मंजीत जी जाना है दिल्ली से बॉम्बे जाना है, आपने फॉर एग्जांपल आप गूगल में नहीं सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपने मेक माई ट्रिप में किया, आपको पता चलेगा वो गूगल उठा के ना हर साइट पे आप जहाँ पे भी जाओगे ना, वो एक दिखा देगा जी, आपको दिखाना शुरू कर देगा कि मंजीत जी जो है, या आपने शर्ट्स क्या सर्च किया है, वो आप देखोगे मंजीत जी, आप किसी भी साइट पे चले जाओगे, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे चले जाओगे, आप मेक माई ट्रिप कहीं भी चले जाओगे, वो उठा के मेक माई ट्रिप में भी जाओगे, वो शर्ट, हाँ जी मंजीत जी वो सर उसकी एड्स भी उसकी वही दिखाएंगे हमें, उसी की एड्स वही आनी शुरू हो जाएंगी, अनलेस आप दुखी हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्किंग है ये वाली। हाँ एग्जैक्टली, कोई ऐसी नई चीज, हाँ कोई ऐसी नई चीज करेंगे तो वो मेरे इंटरेस्ट के ऊपर मेरा सर्च करता है वो। जैसे एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इन रियलिटी आपको मालूम है, जो रेगुलरली कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हैंडफोन यूज कर रहे हैं, 1 TB तक डेटा जो है ना वो गूगल के पास हमारा पड़ा हुआ है। आपको याद नहीं होगा कि आप कौन सी साइज की शर्ट कौन सी कहाँ पहनते हैं, लेकिन कहाँ आप ट्रिप में जाते हैं, लेकिन गूगल जो है सब याद कर बैठा हुआ। आपने देखा होगा आजकल वो फोटो खींची होती है, आपने 5 साल वाली पुरानी फोटो ले आता है जी, वो गूगल उठा के, ले लो जी मंजीत जी आप फैमिली के साथ गए थे, आप पापा के साथ, वो ये भी बता देगा कि आप नेचर के पास वो क्लासीफाई कर देगा कि ये पहाड़ों वाली ये वाली फोटो है, ये आपकी अपनी जिसमें सिर्फ वो वाली ये वाली फोटो है, इस तरह की आजकल टेक्नोलॉजिकली। तो मतलब लिटरली आपको अपना याद नहीं होगा, लेकिन वो गूगल जी जो है वो आपके बारे में ज्यादा जानते हैं। सर जैसे ये तो अभी बेनिफिट है, इसके नुकसान भी हैं बहुत सारे। जैसे अभी हमारा फिंगरप्रिंट है, अभी हर फोन पे फिंगरप्रिंट लग रहा है, तो वो भी तो एक तरीके से कहीं ना कहीं स्टोर तो हो ही रहा है, हमारा स्टोर हो रहा है सर, मिसयूज भी हो रहा है कहीं ना कहीं। ये चीजें जब बहुत सारी चीजें मिसयूज भी जाती हैं, जो फ्रॉड भी होते हैं, वो वही है कि टेक्नोलॉजी से दूर भी नहीं भागता। ऑब्वियसली उसको आपको थोड़ा अवॉइड तो करना पड़ेगा कि ऐसे आप मिसयूज ना हो। आप अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर, बोलता हूँ आप वो स्टेप्स लें जिससे चीजें, आप अपने एक्शन गलत मत लें, समझ गए ना। अब मेरे को कोई अचानक से कॉल करता है OTP के लिए बताने के लिए, तो मेरी बेवकूफ़ी है। अगर आज इतना प्रोपेगेंडा हो चुका है, आज इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है, उठा के मैं अगर OTP बता दूं किसी को, तो बेवकूफ़ी मेरी है। कोई भी किसी भी रीज़न से मेरे से OTP मांगे, अगर मैं बता देता हूँ। आजकल तो सर ऐसी एप्स भी आ गई हैं, मतलब होना चाहिए तो ये 2 वे ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो आपका बंद हो गया जो अपने लॉगिन किया, प्लस आपका OTP के थ्रू हो जाए, तो 2 तरीके से जो कर रहे हैं वो तो चलो सेफ्टी के लिए है, बट फिर भी जैसे कह रहे थे ना, जैसे पूरे जैसे MI, जैसे ये तो चाइनीज ब्रांड है, जैसे जो चाइना वाले फोन है, वो हर जैसे मान लो 10,000 का मोबाइल आ रहा है, उसमें भी उनके फिंगरप्रिंट है, फेस स्कैनर है, सब कुछ है, आई रेटिना सारा कुछ कैप्चर कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं तो उनके डाटाबेस में स्टोर हो रहा है वो सारी चीजें, तो कभी ना कभी इस तरह से कुछ भी हो सकता है। मैं वही बता रहा हूँ ना, कुछ भी हो सकता है। अब कई बार तो ऐसा लगता है यार बंदे ने कुछ बोला और वहां पे देखते हो आप कंप्यूटर में गूगल में आपने कुछ सर्च किया, बड़ा हैरानगी होती है कि यार ये सच में कहीं कैप्चर तो नहीं कर रहा। मतलब हालांकि अभी वो कह तो ये रहेंगे आपके, जो मैं और आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई GST की बात कर रहे हैं, वो उठा के जो है नेक्स्ट सर्च करोगे, वो गूगल में कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइजर ले आएगा गूगल, उसी तरीके का, उसी तो मतलब कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं। हालांकि आई डोंट नो ऑनेस्टली, मतलब मैं उस चीज को कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन मैं लोगों से ये भी सुना कि हाँ भाई वो बात कर रहे थे किसी से और कंप्यूटर के सामने, और जो है नेक्स्ट टाइम जब वो गूगल पे गए, उन्होंने सर्च किया तो उसी चीज की एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो गई, जबकि एक्चुअली उन्होंने सर्च नहीं की थी। बात करना भी कर रहे हैं। well that is practically possible। मैं नहीं, मेरा एक दोस्त बोल रहा था, मैं उससे एग्री भी नहीं किया, कोई डिसएग्री भी नहीं किया, बट इट इज पॉसिबल। अगर आपके
अंदर कोई ऐसा कोई लगा हुआ है जो आपको कैप्चर कर सकता है, जो वॉइस को कैप्चर कर रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल। अब मुझे नहीं पता कितना हद तक अलाउड है, कितना हद तक, जैसे यूरोपियन यूनियन में काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं इसको लेकर, प्राइवेसी को लेकर। हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं है। और फिर हमारे यहाँ चलता एटीट्यूड भी होता है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या बोलती है और मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या कॉपी करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि यार कुछ नहीं होगा, एक एटीट्यूड है हमारे यहाँ पे, ये कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। काफी टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल दिया है। एब्सोल्युटली जी, मतलब बेनिफिट भी है, ऐसा नहीं इसके बेनिफिट नहीं है, बट एट द सेम टाइम तो केयरफुली यूज करना पड़ेगा। अब मैं देख रहा था सर, जैसे गूगल मैप्स है, तो उसने मेरा पास्ट मेरे को ये बता दिया कि मैं कहाँ गया हूँ। लास्ट 10 इयर्स का मेरे को बता दिया कि मैं इस प्लेस पे कब गया था। हाँ एब्सोल्युटली, वो टाइमलाइन मेरे को बता देगा। और मेरी उसके साथ अब गूगल फोटोज है, उसके साथ लिंक भी कर देगा कि आपकी यहाँ पे प्लेस पे फोटो भी थी, यहाँ पे आप इस टाइम पे गए थे, आपका ये सारा कुछ है। ट्रैक आपको पूरी ट्रैकिंग करके दिखा देगा। आपने ये रेस्टोरेंट में जहाँ खाना खाया था 5 बार विजिट किया था, आप ये जगह पे गए थे, मतलब हर चीज ऐसी कुछ नहीं करेंगे तभी रजिस्टर होगा। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ नया, मतलब बात तो अल्टीमेटली ये है कि कुछ नया आइडिया होना चाहिए, कुछ नई चीज होनी चाहिए दिखाने के लिए कि हाँ भाई समथिंग यू आर डूइंग व्हिच हैज नॉट बीन डन, राइट, और नॉट बीन नोन। So sir, I think we have done with the queries, so we may conclude the session. Manjeet ji, please proceed. Thank you so much sir. Thank you जी, thank you for giving me opportunity, Manjeet जी, Mohit जी, thank you sir, Sethi साहब for coming, wonderful session today. और राजेंद्र जी, बेस्ट विशेस फॉर राजेंद्र जी। आई मीन अगेन मैं सबको ये कहता हूँ कि आपको जो अच्छा इंसान होना है ना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है उनके लिए रास्ते जरूर खुलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर अब सीएम मोहित शर्मा जी वोट ऑफ थैंक्स के लिए करेंगे सर। Thank you Manjeet ji. Respected CA Suresh Shetty sir, guest of honor for today's program in absentia. I think sir has left. CA Naresh Lakhani ji, guest speaker of the program. CA Manjeet Singh ji, moderator of the program, and our respected participants. A very good evening to all. First of all, I convey my heartfelt thanks to CA Suresh Shetty sir on behalf of team Happy GST, a very senior and renowned chartered accountant, for sparing his time for today's program and for his kind words about the team. And sir was thanking our team for the invitation, but I think it's our privilege to have him at the webinar. Thanks again to Shetty sir. I also convey our thanks to CA Naresh Lakhani ji, guest speaker of the program, for sharing his knowledge and wisdom with the participants. Naresh sir is a chartered accountant, a CPA from USA, and working very well in the profession. And I'm amazed he's also passionate about yoga, for supporting the society for social causes, and he's also a very good motivational speaker. Your session was very fruitful, and we have learned many new things, sir. We are honored with your presence. Thanks a lot for joining, sir. Thank you, sir. मेरा एक वैसे YouTube चैनल भी है, कैरेक्टर एंड लाइफ स्किल्स नरेश लखानी करके आप डालेंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लो प्लीज। थोड़े मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। हाँ सर, आई नो उसमें कम से कम 35 वीडियो हैं जो कुछ प्रोफेशनल रेलेवेंस के भी हैं और लाइफ स्किल्स कैरेक्टर पे भी हैं, एंड आई एम श्योर everyone would gain something about it. लीडरशिप पे हो गया, कम्युनिकेशन स्किल पे हो गया, पब्लिक स्पीकिंग पे हो गया, और हेल्थ, हैप्पीनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बड़े सारे टॉपिक्स में, और ऑब्वियसली प्रोफेशन के टॉपिक्स पे भी मैंने डाल रखे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। एंड अगेन थैंक यू ऑल, सबसे बड़ा ऑडियंस का थैंक यू जो आते हैं सुनते हैं, उनकी पेशेंस होती है, राइट। और आप लोगों को भी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। Thank you sir, thank you so much. I'm also thankful to CA Manjeet Singh ji, moderator of today's program, for conducting the program in a very well manner. Thank you Manjeet ji. And at last, I would like to convey thanks to our worthy participants for sparing their time and joining us for the program. Thanks a lot. Jai Hind, Jai ICA. Thank you. Thank you sir, thank you. Thank you.